السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے آمین میڈیا کی جانب سے ایک گجرات کے اولیاء اللہ نام کی سیریز ہم نے شروع کی ہے، جس میں احمد آباد اور گجرات کے اطراف کے جتنے بھی جو اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی کے حالات کو ہم اس طرح سے کسی نہ کسی شخصیت کو ان کے متعلق بلا کر اسٹوڈیو پہ وہ سیلیبریٹی بلا کر ان کے پاس ان سے انٹرویو لے کر ان سے ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو پہ جو موجود ہیں شاہ عالم صاحب درگاہ کے امام صاحب جناب صدیقی صاحب موجود ہیں۔ تو صدیقی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو کے اوپر۔ شکریہ۔ تو صدیقی صاحب آپ سے آج جو مکالمہ ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ شاہ عالم صاحب کی زندگی کے حالات سمجھنے کے لیے اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک زیادہ جانکاری ملے، اس سبب سے آپ کو یہاں اسٹوڈیو پہ مدعو کیا گیا ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے، سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے، شاہ عالم صاحب گجرات کے روحانی شہنشاہوں میں جن کی گنتی ہوتی ہے، اور کہ یہ جو گجرات ان کی ولادت کا قصہ سنائیے اور ان کے متعلق کچھ اور جانکاری دیجیے جس سے عوام یہ سمجھ سکے کہ یہ کتنے بڑے اور کتنے پائے کے بزرگ تھے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس اسٹوڈیو کا جو ہے عثمان قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے یہ بہت ہی بہترین اولیاء اللہ کی یہ سیریز چلائی اور اس میں تمام اولیاء میں سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر کیا۔ جی، تو ویسے تو شہنشاہ گجرات جی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گجرات جانتا ہے، صحیح، ان کے نام سے، ان کے اس لقبات سے سارا واقف ہے، لیکن ایک سرسری طور پر جی 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 بالکل کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا واقعہ ہوا تھا، آپ کی زندگی کیا ہے، یقیناً یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی، لہٰذا میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں مختصر وقت میں مختصر باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں جہاں کے تاجدار حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضور تاجدار کائنات، جان کائنات جس کی بشارت دے، جی جی، اس ہستی کا وہ کتنی بڑی، صحیح، سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر سے تھوڑا دور جا کر ایک جو ہے بنا ہوا تھا، جی جس میں آپ جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک، وہیں پر آپ عبادت کر رہے تھے کہ مراقبے میں تھے، کہ اسی مراقبے کے عالم میں آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر باطن میں جاری تھا، اور اسی وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس مراقبے میں تشریف لائے، ٹھیک، اور فرمایا کہ عبداللہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، برہان الدین تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا۔ جی، اس کی بشارت عطا فرمائی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ چند باتوں میں میری طرح ہوگا، جس میں مشہور ہے 4 باتیں۔ پہلا یہ کہ وہ ہم شبیہ رسول، یعنی میری شباہت، میری ہم شکل ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمد، ہم شبیہ رسول ہوگا، سبحان اللہ، دکھنے میں، قدا وضع میں میری طرح ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا۔ تیسرا کہ وہ جیسے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی ولایت پہ ہوتا ہے، جی، یعنی ولایت عیسوی، ولایت موسوی، ولایت یوسفی، ولایت ابراہیمی، جی، فرمایا کہ یہ جو ہوگا آپ کا شہزادہ فرزند، وہ میری ولایت محمدی پر ہوگا۔ بہت خوب، بہت خوب، چوتھی بات کہ جس طرح میری عمر شریف 63 سال ہوئی، اسی طرح اس بچے، اس لڑکے کی عمر بھی 63 سال ہو گئی۔ ٹھیک، تو یہ 4 چیزیں سرکار دو عالم نے خود ہی ولادت کے پہلے آپ کے والد محترم کو بتائی۔ لیکن ہم جب آگے چلتے ہیں تو ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے، جی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح شاہ عالم کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، کیا بات، قطب عالم بخاری۔ جس طرح میرے آقا کے والدہ کا نام سید آمنہ ہے، آمنہ، جی جی، اسی طرح شاہ عالم سرکار کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہے۔ بہت خوب، اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی دائی کا نام حلیمہ ہے، جی جی جی، بس اسی طرح سید محمد سراج الدین شاہ عالم کی دائی کا نام بھی حضرت حلیمہ ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی چیزیں جو ہے ہمارے سرکار سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ٹھیک، دکھنے میں بھی، نام میں بھی، ولایت میں بھی، ولادت میں بھی، سبحان اللہ۔ تو یہ تو میں اور یہاں ایک اور سوال جوڑ دوں آپ سے اسی سلسلے میں کہ شہنشاہ گجرات، روحانیت کے تاجدار حضرت شاہ عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو درس و تدریس کیسے ہوئی، اس کے اوپر کچھ جانکاری دیجیے۔ آپ کی تعلیم و تربیت، جی جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا بہترین سوال ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت بہت اہم چیز ہے، ٹھیک، بہت ضروری چیز ہے، جی، اور اسی کے بعد بندہ کچھ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے خاندانوں میں، یعنی ہماری
बुजुर्गों के ख़ानदानों में, खानकाहों में तालीम और तरबियत हमेशा रही है। उसी में सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या कहने, आपके वालिद, आपके दादा, आपके चचा, यानी पूरा ख़ानदान ही खुद ही इल्म व विलायत वाला, ठीक है, जो हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफ़क्किर भी थे, वली भी थे, कुतुब भी थे, कुतुबुल अक़ताब भी थे। तो सबसे पहले आपकी जो तालीम हुई वो अपने घर से ही हुई। वालिद मोहतरम सरकार वली इब्ने वली सारी चीज़ें इल्म व विलायत पहले ही से, तो घर ही से आपकी आगाज़ हो चुका था। बिस्मिल्लाह खान। मुझे मशहूर किस्सा याद आता है, मैं चाहता था कि आप वो दोहरा दें कि शेख अहमद खट्टू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेख जहानिया जहांगस रहमतुल्लाह का दिया हुआ खिरका इनको जो पेश किया, तो किस तरह से पेश आए उसका किस्सा हमको लगता है। ये भी इसी में है कि जैसे खुतबे आलम सरकार से आपको तालीम और तरबियत मिली, तो एक उस्ताद आपके शेख अहमद खट्टू भी है गंज बख्श, वहाँ से भी आपके बहुत से फयूज़ व बरक़ात आपको बताओ, एक तरह के आप रूहानी उस्ताद भी है, उस्ताद भी। उसमें ऐसा हुआ कि हज़रत सैयदना सरकार मखदूम जहानिया जहाँ गस्त रहमतुल्लाह ताला सैयद जलालुद्दीन जो आपके परदादा है, आपके पास वो खरका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मदीने में अता फरमाया था, और ये कह के अता फरमाया था कि आपके विसाल के 33 साल के बाद आपका पोता सैयद मोहम्मद पैदा होगा। ये भी एक बशारत है, अल्लाह अकबर, 33 साल पहले की बशारत। हाँ, आप उसे ये अता फरमाया, ये अमानत अता कर देगा, ये अमानत अता कर देगा। और वो खरका ऐसा था जिसमें आपके 99 नाम मुबारक लिखे हुए थे, सरकार दो आलम के नहीं, शाह आलम सरकार के तो है ही नाम, मगर उन्हीं की तरह शाह आलम सरकार के भी 99 नाम जो सिफाती नाम है वो लिखे हुए थे। कहा ये, और ये खिरका कौन सा है, ये महबूबियत का खिरका है, खिरकाए महबूबियत है। इसे आपको अता किया जा रहा है, ये आप अपने परपोते तक इसे बतौर अमानत आपको दिया जा रहा है, उसे पहुँचाना है। अब आप जब यहाँ आए और आपकी नज़र ने देखा तो शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला पे नज़र पड़ी, आपने उनको ये खरका दिया और ये कह के दिया कि मेरा पोता यानी पर पोता सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम जब आए तो ये मैं बतौर अमानत आपको दे रहा हूँ जो मदीने से मुझे मिला है और खरकाए महबूबियत है, ये तुम्हें मेरे उस पर पोते को अता फरमाना है। और भी बहुत सारी रूहानी, मतलब शाह आलम साहब की जो इनके घर के बच्चों की सारे को दावत की और उनको उसी वाक़े तो उस ताल्लुक से जब आप शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपके फर्जंद कुतुब आलम के तमाम आपने दावत दी, बुलाया, तो चूँकि आप साहबजादे थे, छोटे थे, तो ऐसा ख्याल हुआ कि इनको नहीं ले जाया जाए वहाँ पे दावत में शेख अहमद सरकार के, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ यानी साथ में आना। बहरहाल आप साथ में आए। मुख्तसर ये है कि जब आप गए वहाँ पहुँचे तमाम साहबजादे, और आप शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाज़ रिवायत में मुसल्ला का टुकड़ा और बाज़ रिवायत में आपने जो भी चादर का टुकड़ा आपने तमाम को अता फरमाया बैठने के लिए, या ऐसे ही तबरुक के तौर पे कुछ नेमत अता करने के लिए। तो सब हजरात को जब को दिया तो सभी ने हाथ में लेकर, किसी ने हाथ में रखा, किसी ने बिछा लिया, किसी ने पास रखा, लेकिन सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो टुकड़ा, वो मुसल्ला, वो जो चीज़ थी आपकी अता करता, उसको अदब से अपने सर पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सर पे रखा। इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, लिहाजा ऐसे शख्स की जब आता है तो उसको तो फिर सर पे रखनी चाहिए। ये सोच करके आपने सर पे रखा, अब और हजरात के हाथ में था, किसी ने ज़मीन पे रखा। तो बहरहाल सबका एक तमन्ना थी कि सरकार शेख अहमद के हाथों से हमें कुछ मिलेगा, जो रूहानी नेमतें हैं जो, लेकिन जब पता चला तो कहा कि हमने तो अता कर दिया। अच्छा, कहाँ किसको अता किया? कहाँ जिन्होंने मेरा ये जो मसल्ला है, ये टुकड़ा है चादर का, जिन्होंने अपने सर पे अदब से रखा है, ये सारी नेमतें, सारी रहमतें उसी को मिली और ये उसी की थी, उसी के लिए दी गई थी मुझे। ये सारा खर्क फिर आपने वो खरका निकाला जो आपने मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिला था, और उन्हें पहनाया और कहा कि ये खिरका महबूबियत ताजदार कायनात से तुम्हें अता किया गया है। अदब फिर एक बार बाजी मार गया। हाँ, फिर अदब आपका जो है वो मिल गया। क्या बात है। और जो आपको वहाँ से भी उस्ताद भी है और सारा रूहानी। अच्छा, एक और इनका किस्सा, जैसे जो शाह आलम का जो लक़ब मिला शाह आलम का लक़ब, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। और जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए पूछा, तो वहाँ पर जो है आप कुछ दीवार का काम कर रहे थे, चुना कर रहे थे, और वहाँ जो है बनाई हुई वो जो सालन था वो चीज़ बहरहाल आपके सर पे रखी और कहा कि देखिए आपको अब आप इसको ले जाइए जो हमने बनाई है, और अपने एक मुरीद को साथ में कर दिया आपने, वहाँ के जो खादिम और मुरीद थे उनको साथ में किया, और कहा
जहाँ से आसमान और ज़मीन हर ज़र्रा पुकार उठे कि ये शाह आलम है, जी जी, वहाँ से आप वापस आ जाइए, अपने मुरीद को कहा। ठीक ठीक, और बहरहाल आपने उसको लिया और साथ में चलते रहे, और जब 3 दरवाज़ा के पास पहुँचे, एक फ़कीर बैठा हुआ था ठीक, जिसकी आंखें रोशन नहीं थी, मजबूर था, मोहताज था, मतलब कि हर तरीक़े से जिस्मानी एतबार से। बहरहाल सरकार शाह आलम का जैसे ही गुज़र हुआ, आपके दामन की हवा लगी, आंखें रोशन हो गई, उसकी जो बीमारियां थी, कमज़ोरियां थी, वो सारी की सारी दूर हो गई। ये करामत थी आपकी? ये करामत थी। और उस वक्त उसने सबसे पहले ज़बान से कहा कि ये सैयद मोहम्मद तो शाह आलम है। क्या बात है, शाह आलम। अब 3 दरवाज़ा के करीब जो दरो दीवार थे, वहाँ से गैबी आवाज़ें आने लगी, आसमान और ज़मीन से आवाज़ें आने लगी कि ये शाह आलम है, शाह आलम। तब से तस्दीक हुई इनकी, तस्दीक हो गई अल्लाह की तरफ से, और आज तक दुनिया यही नाम से क़यामत तक जानती रही। तो इस तरीके से आपको जाहिर किया गया कि आप शाह आलम भी है, लक़ब आपको कि आलम का बादशाह है। अच्छा, ये दरस तदरीस का जब मामला चल रहा है तो मेरे लिए एक और चीज़ याद आ रही है कि आपकी जो इसमें मज़ार के करीब जो इनकी मस्जिद है, वहाँ पे 2 तख्त लगे हुए हैं, जी तो जी, उसके ऊपर कुछ बताइएगा कि वो 2 तख्त की क्या वजह क्या है? बात है, सुभान अल्लाह, बड़ी तारीखी बात है और बड़ी अहमियत वाली बात है कि देखो दरस तदरीस इल्म क्या मकाम रखता है, और ये कितनी अजीम तरीन चीज़ है, महबूबियत चीज़ है कि आप वहाँ दरस हदीस पढ़ाया करते थे। ठीक, बच्चों को, नौजवानों को, आपके मुरीदों को, आने वालों को, हमेशा जैसे एक मदरसा चलता है, इस तरीके से आप हदीस का हमेशा दर्स पढ़ाया करते थे, उसकी तशरीह फरमाया करते थे, तसव्वुफ़ की बातें, आपके इरशादात, तालीम और तरबियत करते थे। उसमें ऐसा हुआ मुख्तसर अंदाज में कि आप बीमार हो गए और शदीद बीमार हो गए, तकरीबन 8 दिन 10 दिन, बाज़ रिवायत में 15 दिन तक का भी जिक्र है, 15-20 दिन तक आप ना आ सके। अब कम से कम हम 10 दिन लेके चलते हैं कि 10 दिन आप नहीं आ सके। अब 10 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद जब आप सेहतियात हो गई और जब आप तशरीफ़ लाए, अपने मसनद पर उस पर बैठे, तमाम तलबा अदब के साथ बैठे, और जब बारी बारी सबक सुनाने की बारी आई, हदीस का दर्स और सारी किताबें जो पढ़ रहे थे लेकर आए, अब बच्चे ने जब सबक सुनाना शुरू किया तो काफ़ी आगे असबाक थे, काफ़ी आगे सबक, कई चैप्टर आगे निकल चुके थे। तो आपने फरमाया कि भाई मैं तो जब छोड़कर गया हूँ 8-10 रोज़ के बाद आया हूँ, तो आपका सबक तो वहाँ था, ये आपका इसमें कैसे आ गया? तो बच्चों ने बताया सब ने कि हजरत नहीं, आप तो रोज़ाना आ रहे हैं। अच्छा, एक दिन भी आप नहीं आए, ऐसा नहीं? तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं कई दिनों से नहीं आया। कहा नहीं, आप आए हैं, यहीं बैठे हैं और हमें जिस तरह पढ़ाते हैं इसी तरह पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया अच्छा मैं देखता हूँ। आपने आंखें बंद की, अल्लाह की तरफ जो लौ तो थी मगर एक मुराकबा जो होता है सूफिया कराम में, वो मुराकबा किया, फ़ौरन आपको अनवार और तजल्लियात नज़र आए। आप उस तख्त से उठे और कहा कि मेरे लिए दूसरा तख्त, यानी कि दूसरा तख्त बना, ये तख्त अदब व एहतराम से रख दीजिए, और बच्चों की आंखों को बोसा लिया और कहा तुम बड़े खुश नसीब हो, क्या बड़े खुश नसीब हो। कहा इतने दिनों से जो यहाँ आकर बैठकर पढ़ा रहे थे वो शाह आलम नहीं, शाह दो आलम आता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत, ये सिराजुद्दीन सिराज मुनीरा आकर पढ़ा रहे थे, मदीने के ताजदान में आके पढ़ाया, आप लोग बड़े खुश नसीब हो। अच्छा, उसमें एक वाक़या ये भी हुआ कि आपके साहबजादे भी पढ़ रहे थे, राजू सत्तार आलम, आपकी ज़बान में लुकनत थी, तोतलापन, चरासा। तो सरकार दो आलम ने जब देखा तो अपना लुआब दहन चटा दिया, तो जबान भी दुरुस्त हो गई और इल्म और हिकमत के दरिया भी बहने लगे। तो फिर गोया कि आज की तारीख में जब ये जो कोई किसी की मुराद होती है तो 2 रकात नमाज उसकी तख्त के नीचे अदा करते हैं तो उसकी फ्यूज़ और बरक़ात से उसकी वो मुराद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है। तो काफ़ी एक मर्ज़ाए खलाइक मतलब वहाँ पे उससे फैज़ उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हक़ है कि आज भी लगा हुआ है वही तख्त, और दोनों तख्त फिर लगे, सरकार शाह आलम का भी और जिस पर सरकार दो आलम भी जगह फ़र्ज़ हुए, और वहाँ उसे चुमा जाता है, 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है, और उसके सदक़े में जब दुआ मांगी जाती है तो आज तारीख़ गवाह है कि बड़े बड़े उलमा हों या आम लोग हो, या जब वो दुआ मांगते हैं तो यकीनन शाह आलम सरकार के सदक़े में वो दुआएं इन तख्तों के वसीले से, और वहाँ कैफियत भी एक अलग ही है उस जगह की। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की एक और बात मुझे याद आ रही है कि जैसे इनकी जो शादी का मामला था, इस पर आप जैसे हमने जिक्र छिड़ गया इनकी ज़िंदगी के हालात का, तो जैसे कि अब इनकी जवानी का आलम और दर्स व तदरीस का तो हमने सुना आपसे, अब कुछ इनकी शादी का मामला बताइए कि वो किस तरह से इनकी ये ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी गुजरी है, उस पर कुछ बताइए। मुख्तसर में ये है कि पहले जो शादी हुई आपकी, उनकी जो अहलिया थी, बीवी थी, बड़ी नेक मुत्तक़ी बादशाह के घराने की, लेकिन उनका नाम था बीवी मिर्के। ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह वाले की निस्बत और उनकी मोहब्बत और ये उनका जो रिश्ता अल्लाह ताला जब तय करता है, वैसे रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, लेकिन देखिए अल्लाह वाले जब होते हैं
तो उनकी अहलिया भी कैसे अल्लाह वाली होती है, बड़ी नेक पाकीज़ा मेरी की थी। लेकिन उसके बाद जो है विसाल के बाद एक दूसरी और शादी हुई, उसमें भी एक तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन जो है हयात शाह आलम और दूसरे सद-ए-हकायात और जो हज़रत मकबूल आलम आपके परपोते उन्होंने शाह आलम सरकार की जो सीरत फ़रसियन में जो किताबें हैं उन पर आपने बड़ी मतलब तफसीलात आपकी ज़िंदगी पे लिखी है, मगर अभी इतना वक्त भी नहीं और हमें बस सरसरी तौर पे हमें समझना है। तभी वो मुगली से भी आपका जो है रिश्ता हुआ, बाद में जो बड़ी पाकीज़ा नेक खातून थी और बड़ी अज़वाजी ज़िंदगी, एक मिसाली ज़िंदगी बन गई कि लोग आपके यानी कि इस माहौल को देख करके लोग फैज़याब होते थे, मुरीदीन फैज़याब होते थे। और आपके बच्चों की जो तरबियत फिर हुई कि हर बच्चा एक अल्लाह के वली बन करके चला। और यहाँ तक कि हजरत के जो इनके खानदान की तो ये बात रही कि इनके यहाँ के पोपट है वो भी हाफिज़ कुरान हो जाते थे और जो इनके गुलाम होते थे वो भी विलायत का दर्जा पा लेते थे। यानी इतनी बड़ी बुजुर्ग की इतनी बड़ी शख्सियत थी ये कि इनका फ्यूज इतना आम था कि क्या कहना। ताजदार विलायत थे, ताजदार औलिया, अल्लाह ताला ने इनको ताजदार का जो है मकाम कि जानवरों तक इनका फैज़ पहुंचा और वो भी अमर हो गए। उनकी भी मज़ारात आज उनके मज़ार के करीब तोते का मज़ार हम देखते हैं। इसको बोलना नहीं, अब जबान अटकती है तो वहाँ तोते के मज़ार से फैज़ हासिल होता है, वो जो है मतलब एक मशहूर ज़माना बात है। तो दूसरी एक आखिरी बात पे हम आ जाएं कि इनके जो मज़ार की तामीर, तो इसके मुतालिक ये कितने बरस में हुआ और किसने बनवाया, तो क्या एक मुकम्मल तस्वीर लोगों के सामने आ जाए शाह आलम साहब की ज़िंदगी के मुतालिक। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कुछ बताइए आप। ताज खान जो थे वहाँ, ताज खान नरपली, हाँ नरपली जो थे, उन्होंने ही जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये मतलब एक तफसीली बात है। मगर ये है कि फिर धीरे धीरे उन्होंने ही मतलब सरकार के इशारे पा करके रूहानी तरीके से काम किया और जो है ये रोज़ा तामीर करवाया। माशाअल्लाह ये शाह आलम सरकार हैं जिससे काम ले ले, जिसको जो अता फरमा दे, जो काम अता फरमा दे, अपने मज़ार का काम जो है उनसे आपने जो है ले लिया। और आज ये रूहानी एक जब इनका मज़ार देखते हैं, यकीनन आज लोग जब इनको चाहे पोस्टर में देखते हैं और अगर आँखों से देखते हैं तो यकीनन वो मज़ार देख के ही उन्हें मतलब एक तसल्ली हो जाती है जी। हाँ, मामला हो जाता है, इस तरह के हालात हैं। और दूसरा एक मैं चाहूँगा कि जो इनकी जो तारीख विसाल की और विलादत की है वो अंग्रेज़ी और ईस्वी एतबार से क्या होती है, तो वो भी आप जरा जानकारी दें। विलादत जो है वो 17 ज़िलक़ादा, ज़िलक़ादा को जो महीना आता है ज़िलहज से पहले 17 चांद है ज़िलक़ादा का, और जो है 1817 हिजरी सन के हिसाब से, और ईस्वी सन अगर देखा जाए तो 817 हिजरी है। जी हाँ, 817 हिजरी है। और अगर अंग्रेजी ईस्वी सन देखा जाए तो 18 जनवरी 1415 ठीक ये ईस्वी सन में। और इनकी जो विसाल की तारीख क्या थी? विसाल की जो तारीख है वो 20 जमादुल आखिर है। ठीक है, 20 जमादुल आखिर है, जमादुल आखिर का जो महीना आता है। और अंग्रेजी एतबार से जो है 21 अक्टूबर 1475 ईस्वी सन, ठीक ईस्वी सन के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको 63 साल की उम्र। अच्छा, जब हम शबी रसूल थे तो आपकी ज़िंदगी के हालात भी, यानी ज़िंदगी भी सरकार दो आलम की 63 साल की थी, जिस तरह इनकी भी सरकार शाह आलम साहब की भी 63 साल ज़िंदगी हो। आखिरी बात ये थी कि इनके कुछ अक़वाल ज़रिए ऐसे बताए जिससे आवाम मुस्तफ़ीद हो और उनकी ज़िंदगियों में भी बदलाव आए, जिनके 2-4 अक़वाल ज़रिए बताएं, फिर हम ये प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपने फरमाया कि अपने जो ये वक्त गुजर रहा है जी, इसकी गिरफ्त रखो। अच्छा, मतलब इस पर ध्यान रखो कि हमारे ज़माने में कहीं ज़ाय ना हो जाए, ठीक, बर्बाद ना हो जाए। ये वक्त बड़ा कीमती है, आपने फरमाया कि इसको तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दो, अल्लाह के रसूल की फरमा, वरना शैतान और नफ्स की फरमाबरदारी में चले जाएगा। एक वक्त एक है, अगर तुम इसको सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर शैतान नफ्स उसको कन्वर्ट करके गुनाहों में और उसकी ताबेदारी में लगा दिया। खला का मुकाम न रहे, खला रहेगा तो शैतानियत जगह रहेगी, खला रहेगी तो फिर वो अपना काम कर जाएगा। तो या तो दीन की तरफ रहो या रहमान की तरफ रहो या शैतान अपना काम कर जाएगा। लिहाजा कहा कि अपना वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह के रसूल का जिक्र, उनकी सुन्नतों पे अमल करने में मिला। इसी तरह फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश पे कंट्रोल करो, क्योंकि इसमें अगर तुमने गुलामी कर ली तो फिर आप नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, उसका जो फैज़ है, जो उसका जो हकीकी फैज़ है, उसका जो नमाज रोज़ा इबादत का जो मकसद है कुर्ब इलाही, वो हासिल नहीं होगा। लिहाजा आप नफ्स की मुखालिफत यानी उसकी ख्वाहिशात की, गुनाहों की मुखालिफत करो ताकि तुम्हें कुर्ब इलाही नसीब हो जाए। जैसे बहुत सारे आपके फरमुदात हैं, ज़ाहिरी बातिनी एतबार से वज़ू, आप बावज़ू रहते थे और बावज़ू रहने की ताक़ीद करते थे। ज़िक्र इलाही आपने फरमाया पास अनफास करो ज़िक्र, यानी जब सांस अंदर जाए तो अल्लाह और बाहर निकले तो हु, अल्लाह हो, पास अल्फाज। कहा कि इससे करने से भी जो तुम्हारी सांस आती जाती है वो जिक्र इलाही की बरकत से अंदर नूर पैदा करे। फिर फरमाया, इसी पे फरमाया कि अगर नहीं करोगे तो शैतान और नफ्स तैयार है, दुनिया
की चीज़ें तैयार है कि वो शामिल हो जाएगी और तुम काफिलों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा, और जिक्र करोगे तो जाकिरों में तुम्हारा शुमार हो क्या जाएगा, आशिकों में शुमार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब सिद्दीकी साहब, आप यहाँ स्टूडियो पर तशरीफ लाए और आवाम को इतनी अच्छी जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया।